بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود وجہ تخلیق کائنات آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یاد آپ کے ساتھ۔ آنریبل پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا کے تمام دوستوں کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کو میٹ دا پریس کی اس ایونٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ میں شرکت کی اور فیصلہ آباد چیمبر کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ نے ہمیں اعزاز بخشا کہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کے رول کو ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا۔ آئی تھنک سو کہ جو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا پاکستان کی اکانومی میں ہماری ہیوی ایکٹیویٹیز میں ایک اہم رول ہے اور آپ نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا پورے پاکستان میں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ ایک ویل اسٹیک ہولڈر، جیسے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ فیصلہ آباد چیمبر اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ اہم فلموں میں سے میڈیا اور قادر بازی وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، اور آپ کا فیصلہ آباد چیمبر سے ہمیشہ ایک نرینہ اور بڑا پازیٹیو تعلق رہا۔ آپ نے ہمیشہ یہاں کی ایکٹیویٹیز کو، جو بھی فارن انویسٹرز آتے ہیں، کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں، آپ نے ہماری آواز کو بھرپور طریقے سے، میں اگر پاسٹ بیک دیکھوں تو آپ نے فیصلہ آباد چیمبر کو بہت سپورٹ کیا اور آپ کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے۔ سو میں آپ تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ فیصلہ آباد چیمبر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایپیکس باڈی ہے تمام فیصلہ آباد کی جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں، اور پھر اس کی ذمہ داری وہ بھی اسی طرح سب سے بڑھ کر ہے۔ اس سلسلے میں فیصلہ آباد چیمبر نے ہمیشہ ایک پازیٹیو رول ادا کیا اور اس سال بھی انشاءاللہ آپ کو ایک پازیٹیو رول پہلے سے بہتر انداز میں نظر آئے گا۔ میرے اس روڈ میپ میں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا ویژن رکھتے ہیں، میرے آفس بیئر اور میری ایگزیکٹو باڈی ہم کیا ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں فیصلہ آباد شہر کو۔ سب سے پہلے ہمارا گول سیٹنگ ہے کہ فیصلہ آباد کو پاکستان کا معاشی اور صنعتی ترقی کا محور و مرکز بنانا ہے، بزنس کمیونٹی کو بااختیار کرنا ہے، پالیسی سطح پر چیمبر کا مؤثر کردار جو ہے اس کو بحال کیا جائے گا، بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے مرکزی اور صوبائی مقامی سطح پر کوششیں کی جائیں گی، برآمدات بڑھانے کے لیے ہم ڈپلومیٹ سے روابط کریں گے، اور برآمدات کا جب ذکر ہوا بلکہ میں یہاں پر امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کی بات کروں گا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک روایتی جو ایکسپورٹ پر فوکس نہیں کریں گے۔ وی آر ریڈی اینڈ already ڈپارٹمنٹ از آلسو ان ورکنگ کہ ہم نے انشاءاللہ نئی منڈیاں تلاش کرنی، اور یورپ، یو ایس اے، امریکہ یہ بھی انشاءاللہ ہم کام کریں گے، لیکن افریقہ کی منڈی ایک ہمارے پاس ایسی ہے جہاں پہ بہت پوٹینشیل ہے، بالٹک اسٹیٹس ہیں یورپ میں، وہاں پہ یہ ہم نے 7 دن میں جو ابھی اس پہ ہم نے ڈے فرسٹ سے کام شروع کیا، کیونکہ اگر ہم نے پاکستان کے ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں جو لانگ ٹرم پالیسی ہے وہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، ہمارے جو ریونیوز ہم فورن ریمیٹنس آ رہے ہیں یا شارٹ ٹرم پالیسی جو ہے وہ ود دا ٹائم تو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن لانگ ٹرم پالیسی یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہم جو ہے وہ سروائیول کر سکیں گے۔ اس کے لیے ہماری اسپاشات ان اے پازیٹیو سینس
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंशाल्लाह फैसलाबाद चैम्बर से विद द कंसेंसस ऑफ आल ट्रेड बॉडीज इंशाल्लाह हम एक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को देंगे। बजट की तैयारी में भी हम उनकी सपोर्ट करेंगे, हम हेल्पिंग हैंड बनेंगे। और हमें भी ये तवक्को है कि गवर्नमेंट भी जो है वो रियल स्टेक होल्डर्स को लूप में लेते हुए, और जैसे कि फैसलाबाद चैम्बर एक एपेक्स बॉडी है, उसके डॉक्यूमेंट को वैल्यू करेगी, वर्थ इट समझेगी। यहाँ पर राना हबीब साहब तशरीफ लाए हैं, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस टीवी। मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, इस वक्त कोई इशू है, आपने देखा कि गवर्नमेंट भी इस पर कह रही कि हमने $100 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और इसके लिए जो हमें इक़दाम उठाने होंगे वो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट इस पर बड़ा सीरियस हो कि हमें एक सियासी इस्तेहकाम करना चाहिए। अभी रिसेंटली हम एक जापान डेलीगेशन पे हमारा चैम्बर का गया हुआ, जहाँ पर हमने इनको अपनी इन्वेस्टमेंट करने की दावत दी, वो हमें ये दावत दे रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि वाई वी आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, वाई नॉट, क्या वजह है। उसने सारे ये थी डॉलर हमारा फ्लैक्चुएट करता है, इस पे थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो सीरियस भी है और इस पर बड़ा काम कर रही है। सिर्फ इस अमर की ज़रूरत है कि रियल स्टेक होल्डर्स को और ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए, तो इंशाल्लाह हम इस पर काबू पा लेंगे। जैसे अभी हमारे वर्दी प्राइम मिनिस्टर साहब मलेशिया गए और वहाँ पे 200 मिलियन का मीट का कोटा उन्होंने लिया, तो आई थिंक सो इसका अपॉर्चुनिटी हम अब हमारी जिम्मेदारी है कि हमने अब इसको कैसे रिस्पॉन्स करना है, कैसे अप टू द मार्क हमने वो मीट जो है उसको क्या करके और एक्सपोर्ट करना और इकॉनमी में हिस्सा डालना। ये हमारा कोर इशू है एक्सपोर्ट का। और मैं ये भी चाहूँगा कि ऐसी बरामदा, ऐसी इंपोर्ट जो इनोवेशन क्रिएट करती है, मशीनरी पाकिस्तान में आएगी, इनोवेशन होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमें वो भी पुरानी मशीनरी पे नहीं रहना चाहिए। ऐसे इंपोर्ट पे कोई हिडन बैरियर जो है वो गवर्नमेंट को नहीं लगाने चाहिए। इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह टैक्स रिफॉर्म, बिजली और गैस के नियमों के इस्तेमाल के लिए काम करेंगे। गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना हमारी उनको फुल फीडबैक और मुशावरत होगी। फैक्ट्रिक फैसलाबाद आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट, हमारी ये भी कोशिश होगी तो उसको आबाद किया जाए और वहाँ पर फुलफिल तरीके से जो है वो अपने इंडस्ट्रियल्स को सही क्रिएट किया जाए, ताकि वहाँ पर भी आबादकारी जो है वो हो। ड्राई पोर्ट का यहाँ पर बड़ा इशू है, हम इस पर भी काम करना चाहेंगे कि तमाम हमारे इंपोर्टर एक्सपोर्टर कराची पोर्ट को तरजीह देते हैं, तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, हमें इस पर काम करना और इंशाल्लाह हम करेंगे ताकि फैसलाबाद शहर में रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा हो सके। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारा R&D डिपार्टमेंट और जब हम डिप्लोमेट से मिलें तो गैर मुल्की सरमायाकारी जो है PI है, इस पर भी हम काम करें। फैसलाबाद में बड़ा पोटेंशियल है, पूरे पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हम जब ये सियासी इस्तेहकाम पैदा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये फॉरेन इन्वेस्टर भी ज़रूर यहाँ पर आएंगे। इस पर भी फैसलाबाद चैम्बर जो है वो ज़रूर काम करेगा। फैसलाबाद चैम्बर जो है ये मैं समझता हूँ कि अब मोर देन 7 मिलियन लोगों की नुमाइंदगी करता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती कि हमने बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करना है, उनके लिए नए एवेन्यू तलाश करने हैं, वो हम करेंगे इंशाल्लाह। वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम इंशाल्लाह ई-कॉमर्स पे, स्मार्ट बिजनेस पे यूथ को एंगेज करें और अपने नए जो अपने बिजनेसमैन अभी एग्जिस्टिंग उन्हें बताएं कि यूथ के लिए हम अपॉर्चुनिटीज़ जो आज दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी यूथ ने उनसे किस तरह कम्पीट करना है, इस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 7 मिलियन की पॉपुलेशन वो चेंबर की तरफ देख रही होती है कि ये हमारे हक के लिए क्या बात करें।
इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद चेंबर की कोशिश होगी कि फैसलाबाद को दूसरे शहरों की तरह एक मिसाली शहर बनाया जाए। यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, यहाँ पर भी बेहतरीन सड़कें हों, यहाँ पर भी बेहतरीन हॉस्पिटल हों, यहाँ पर भी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट हो। ट्रांसपोर्ट का जिक्र हुआ तो मैं यहाँ पर राज तहसीन पेश करना चाहूँगा। रियली अप्रिशिएट टू चीफ मिनिस्टर मैम मरीम नवाज साहिबा कि उन्होंने 30% और ऑनेस्टली स्पीकिंग फैसलाबाद चैम्बर की इसमें बड़ी एफर्ट है। हमारे तमाम सदूर जो खास दूर से जिसमें रहमान नसीम बड़ा उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और हम गाहे बगाहे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पब्लिकली नहीं होती लेकिन हम अपनी इन फोटोज़ पर कोशिशें कर रहे हैं। हम ये भी इनसे रिक्वेस्ट करेंगे आज आपके अवसर से कि 30 बसें जो हैं फैसलाबाद में नाकाफ़ी हैं और बहुत सारे ऐसे रूट्स जो अभी आपने वहाँ पर बसें नहीं हैं वहाँ पर ये बसों की तादाद जैसे कि आपने 90 बसों का कहा तो जल्द से जल्द फैसलाबाद में ये बसें आएँ ताकि तमाम शहरी जो से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसी सिलसिले में फैसलाबाद चेंबर की हमेशा फैसलाबाद एयरपोर्ट पे बहुत काविशें रही। आपने देखा कि यहाँ पर कराची की फ़्लाइट्स वो बंद कर दी गई, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस यहाँ पर बहुत सारी एयरलाइंस थी वो भी यहाँ पर अब ऑपरेट नहीं करती। तो फैसलाबाद चेंबर ने आपने देखा होगा, आपने विटनेस किया होगा कि ये एयरपोर्ट बिल्कुल इस काबिल ही नहीं था कि कोई एक फ़्लाइट थी, लेकिन उसकी रेनोवेशन हुई, अपग्रेडेशन हुई। फैसलाबाद चेंबर का बड़ा अहम रोल है और नई फ़्लाइटें चलाने में फैसलाबाद चेंबर का बड़ा रोल है। न्यू एयरपोर्ट पे हम बड़ी हमारी डिस्कशन जो है वो चल रही है कि यहाँ पर एक आलमी सतह का एक एयरपोर्ट होना चाहिए और आपको पता है कि उसकी मंजूरी भी हो गई और उसके लिए टेंडर भी मांग लिए गए। और अभी कल ही मेरी बात हो रही थी, PIA के दोस्त यहाँ पर मौजूद थे। ये फैसलाबाद के लिए खुशखबरी है कि यहाँ से अनकरीब रियाज के लिए PIA की जो फ्लाइट है वो शुरू होने वाली है और दे आर कमिटेड कि हम इंशाल्लाह जो है डेली कराची की फ़्लाइट की हमारी डिमांड है। इस्लाम एयर जो है वो फैसलाबाद से ऑपरेट करने के लिए उनकी भी वर्किंग आलमोस्ट कंप्लीट है। साउथ एयर जो है वो फैसलाबाद से एयरलाइन जो है अपनी शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड है और फैसलाबाद चैम्बर इसमें आपको अपना रोल इस तरह उसने प्रीवियसली प्ले किया, आपको इसमें भरपूर एफर्ट करते हुए नज़र आएगा और हम अपने फैसलाबाद के शहरों के लिए ये जो लाहौर के सफ़र है, इस्लामाबाद के सफ़र है, ट्रैवलिंग के लिए इंशाल्लाह जल्द ये जो है वो ख़त्म होंगे। इसके साथ साथ हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग R&D डिपार्टमेंट जो है वो कायम कर दिया है यहाँ पे और हमारी कोशिश होगी कि हम आपके तवज्जुह से यहाँ गवर्नमेंट को बड़े फ्रेंडली माहौल में ऐसी रिसर्च दे जिससे हमारी इकॉनमी जो है वो खड़ी हो सके। एक मैं पैगाम और देना चाहता हूँ, फैसलाबाद चैम्बर तमाम ब्यूरोक्रेसी के साथ, तमाम अदारों के साथ मिलकर काम करना चाहती है एक हेल्दी इन्वायरमेंट में। और मैं समझता हूँ कि हमारे जो अभी कमिश्नर जहांगीर साहब हैं, अभी एक बोर्ड मीटिंग थी तो मैंने उन्हें उनका वर्किंग स्टाइल देखा, उनका विजन देखा एंड बहुत कोऑपरेटिव और उन्होंने चैम्बर को प्रॉपर ऑन किया। उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह चैम्बर को साथ लेके चलेंगे और आपकी मुशावरत को जो वैल्यूएट किया जाएगा, क्योंकि हम पूरे शहर की नुमाइंदगी करते हैं, हमें पता है लोगों का क्या मसला है। तो उन्होंने इस पर कंसेंसस वर्क किया। रियली अप्रिशिएट कमिश्नर साहब वो बहुत पॉजिटिव। इंशाल्लाह तमाम अदारे जो है उनको हम ग्रुप में देंगे और आप देखेंगे कि हेल्दी इन्वायरमेंट कायम होगा और फैसलाबाद शहर का काम होगा। हमारा असल मकसद, हमारी असल गोल सेटिंग तो यही है कि आपने हमें शहर के काम करवाने हैं। इंशाल्लाह हम अपने शहर के जो तमाम पॉलिटिशियन हैं उनको भी यहाँ बुलाएंगे, उनसे हम मिलेंगे, मीटिंग्स करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम एक कंसेंसस डेवलप करके एक ऐसी आवाज़ फैसलाबाद से उठाए कि फैसलाबाद से काम होता नजर आए
اور میں یہ بھی بہت ہوپفل ہوں، ہمارے پرائم منسٹر بڑی محنت کر رہے ہیں، ہمارے چیف منسٹر بڑی محنت کر رہے ہیں. ہمیں صرف اس عمل کی ضرورت ہے کہ انہوں نے چیمبرس کو لوپ میں لینا ہے، ریئل اسٹیک ہولڈرس کو لوپ میں لینا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ ڈیفیسٹ بھی کم ہوں گے اور ہماری اکانومی بھی کھڑی ہوگی اور ہم محتاجی اور آئی ایم ایف سے جو ہے اپنا جان ضرور چھڑانے میں کامیاب ہوں گے. آخر میں آپ تمام دوستوں کا دوبارہ شکریہ ادا کروں گا اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ آپ فیصل آباد چیمبر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہمیں اس شہر کی آواز بلند کرنے میں بھرپور سپورٹ کریں گے اور ہم مل کر انشاءاللہ، جیسے میں نے کہا کہ ہم اداروں سے اور اس طرح میں آپ کو بھی ایک اسٹیک ہولڈر سمجھتا ہوں، آپ کے بنا بھی شاید ہم اپنے ریفارمز کرنے میں اس طرح کامیاب نہ ہو پائیں. تو آپ کی سپورٹ ہمیں درکار ہوگی. فیصل آباد چیمبر کے لیے آپ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں. آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جائے گا. آپ سے کنسنسس بھی کیا جائے گا، آپ سے مشاورت بھی کی جائے گی، کیونکہ آپ فیلڈ میں کام کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے پاس بھی آتی ہیں. اور